Hello friends, welcome to EduTap. I am Prakash. I am a company secretary and a law graduate, and today I am here with a big surprise for those who have been preparing for SEBI Grade A Legal Officer examination. Friends, we have been getting a lot of calls, messages, emails regarding the MCQ course for SEBI Grade A Legal Officer examination since notification is expected to be come out in the month of January 2022. But now the question is, why this MCQ course only? So friends, being a law graduate, what aspirants generally face that they have covered almost more than 90% of the syllabus of SEBI Grade A Legal Officer examination at the degree level itself. But they don't have access, they don't have any course in which they can solve a lot of MCQs which can take their preparation at next level. So students have been requesting us to come up with this kind of course, so that is why we are here with this course, that is 5,000 plus most important MCQs, 5,000 plus important MCQs for SEBI Grade A Legal Officer examination. So if we talk about some special feature of this course, so here you can see that this course is related to paper 2 of SEBI Grade A Legal Officer examination, and that too for both phase 1 as well as phase 2. One important feature of this course is that here we are providing more than 500 plus MCQs free of cost. For that you do not need to pay anything. So around one tenth of the course content you will be given free of cost. This we are providing to students to build their trust, and after solving these, after looking these MCQs, they can decide whether they want to take this course or not. Right friends, so I hope you got the clarity. So I am very much excited about this course. I am very much excited to tell you the details of this course, to tell you the offerings of this course. So let's proceed. So friends, in this course, that is the more than 5,000 MCQs course, you will be given the MCQs chapter wise. What do I mean by chapter wise MCQs? So let's take an example. So you know very well that Constitution of India is a part of your phase 1 as well as phase 2 syllabus of this examination. So if you see the syllabus that we have already discussed in earlier sessions, so if you see the syllabus, you will find that Constitution of India have been divided into various parts. That is Constitution of India Preamble, Part 1, Part 3rd, Part 4th, Part 4th, Part 4th, Part 5th, etc. तो इन सारे ही पार्ट्स अलग अलग स्पेसिफिकली सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर का. तो वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन है दैट व्हाट विल बी आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो प्रीएम्बल, Part 1, Part 3, Part 4th, etc. आर मेंशन्ड इन द सिलेबस दैट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज पार्ट इटसेल्फ. तो यहां पर स्पेशल फीचर क्या होने वाला है कोर्स का, that you will have the MCQs from each parts. Like for example, if we talk about the preamble of Indian Constitution, so you will have around 20 questions from the preamble. If we talk about the part 1st of our Indian Constitution, then you will have 20 questions from part 1st also. If we talk about part 3rd, so you will have around 70 questions from part 3rd. That is divided into two parts, that is part 1, part 3rd, part 1 and part 3rd, part 2. Why this is so? Because अगर आपके पास limited questions है, so you can solve those MCQs, you can revise those MCQs कभी भी जब आपके पास टाइम लगेगा, right? If you have 35 MCQs in your hand, this become very handy for you to revise, to solve these MCQs. But if you have 70 MCQs in your hand, so that for that you need separate time to solve these MCQs. That is why we have divided each part, not each part, rather we have divided important parts into different sub parts, so that part 3rd में भी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 35 MCQs हैं, part 3rd का जो सेकंड वाला वर्जन है उसमें भी 35 MCQs you will get. Similar is the case with part 4th का यहाँ पर part 1st और part 2 you will get it, right? So I hope you got the clarity. इसी तरीके से आपको चीजें MCQ वाले कोर्स में मिलने वाली हैं, right? यहाँ पे जो भी लेजिस्लेशन, जो भी मेंशन है यहाँ पर आपके सिलेबस में, उसको इसी तरीके से बाइफरकेट किया गया है, सो दैट आप इजीली तरीके से सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आप कवर कर सकें और कुछ भी आपके प्रिपरेशन में कुछ भी स्किप ना हो जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, राइट? सो दिस इज अवर you can say this is our effort to give you all possible things which we can. तो इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन में सेम थिंग करनी है. when you cover
Suppose if you cover the preamble part of the Constitution of India, so immediately after that you have to solve the MCQs related to preamble, राइट। इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज ये होगा दैट इफ यू आर एबल टू सॉल्व मोर देन 90% ऑफ एमसीक्यूज करेक्टली, दिस मींस दैट यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व लॉट ऑफ एमसीक्यूज करेक्टली, देन आपको कहीं ना कहीं चीजें रिवाइज करनी है, कहीं ना कहीं आपको चीजें चेंज करनी है अपनी प्रिपरेशन में, आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है, बट दैट विल बी कन्फाइंड टू द प्रीएम्बल इटसेल्फ ओनली, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट लेवल पे ही गलती कर दी, देन यू विल आइडेंटिफाई दैट मिस्टेक and you will not repeat the same mistake in part first when you start the preparation for part first of Constitution. इसका अदर साइड अगर हम देखें तो अगर if you solve the MCQs after covering the entire Constitution, then in that case क्या होगा कि जो मिस्टेक आपने प्रीएम्बल वाले पोर्शन में की थी, सेम मिस्टेक आपने आगे वाली चीजों में भी कर ली अपनी रीडिंग अप्रोच में। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, चीजें वापस से रिवाइज करनी होंगी, वापस से आपको रिवाइज करके री-स्ट्रेटेजाइज करके आपको चीजें कवर करनी होंगी। तो अगेन यू हैव टू For that you have to re-strategize your entire Indian Constitution वाला पार्ट, तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और as you know the time is left around 60 days, ठीक है, आपके पास 60 days टाइम बचे हुए हैं, that we have discussed in yesterday's session, that you can see by going to the link given in the description box below, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी अप्रोच से आपको करना है कि आपने एक पार्ट यू हैव कवर्ड, आप उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो आपको कवर करने हैं। सेकंड पार्ट यू हैव कवर्ड, आपको उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज कवर करने हैं आप वो कवर करेंगे। तो इसी तरीके से आपको कोर्स में भी सारी चीजें मिलेंगी सेपरेटली। लाइक फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट की भी बात कर लें तो कंपनीज एक्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से स्पेसिफिकली वेल डिफाइंड है सिलेबस में, राइट। तो आपको उन्हीं चैप्टर्स वाइज आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। लाइक कंपनीज एक्ट चैप्टर 1 उसके सेपरेट एमसीक्यूज, कंपनीज एक्ट चैप्टर 2 उसके सेपरेट एमसीक्यूज, इसी तरीके से आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे और दैट विल मेक योर प्रिपरेशन एट नेक्स्ट लेवल, बिलीव मी एट नेक्स्ट लेवल। क्योंकि जब आपके पास सारे चैप्टर के लिए जब आपने कॉन्सेप्ट्स कवर किए उसके बाद आपने एमसीक्यूज कवर कर लिए, सो वहां पे यू विल बी इनफ कॉन्फिडेंट दैट अब इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन इफ अपीयर्स इन योर एग्जामिनेशन यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। सिमिलर यहां पर वही चीजें दी हुई है जैसे हमने डिस्कस किया अभी, कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे पार्ट 6 भी पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस तरीके से जो भी पार्ट्स बड़े हैं, जहां पर जो भी पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सो दैट आपके लिए प्रिपरेशन करना क्वाइट इजी हो जाएगा, राइट। You can see here the column of date also, यहाँ पर जो डेट दिए गए हैं this is the date of deliverables, right। यहाँ पर deliverables की डेट प्रोवाइड की हुई है। Like you can see here that by 25th December 2021 you will have the MCQs related to Constitution part 5th and that to part 2, ठीक है। और अगर हम Constitution part 6 की बात करें तो part 6 जो है आपको 25th 12 तक आपके कोर्स में अपलोड हो चुका होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गई चीजें। इसी तरीके से अगर हम बात करें इन पार्ट्स की जिनमें डेट है 21/12/2021, सो दे हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड इन योर कोर्स, दे हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड इन योर कोर्स, राइट। सो यहां पर ये डेडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं इन विच the entire content related to that particular topic which has been mentioned here वो चीजें अपलोड कर दी जाएंगी आपके कोर्स में। So I can say that by the end of 31st Jan 2022, by the end of 31st Jan 2022 you will have the entire 5000 plus MCQs to practice. So I hope you got the clarity here. 31st Jan 2022 तक you will have more than 5000 plus MCQs to prepare, to revise your topics, to revise your syllabus of SEBI grade A legal officer examination. So let's understand what courses will you get, what sub courses you will get if you take this course। so आपको कौन कौन से courses का access मिलेगा and what are the special features of those courses as well, right। so first of all जो पहला course आपके पास रहेगा that is the course related to common syllabus। what is the meaning of common syllabus? you know very well that there are around 90%, you can say 90% of the syllabus of phase 1 and phase 2 are same, ठीक है। दोनों सिलेबस सेम है, 90% सिलेबस जो है वो phase 1 और phase 2 का सेम है। that is the topics mentioned in phase 1 and phase 2 are quite same। तो उसके लिए एक अलग से कोर्स बनाया गया है that is in which you will get the topics related to topics which are common for both phase 1 and phase 2। तो उसके रिलेटेड जो भी MCQs हैं you will get in that course।
राइट, बट यू नो वेरी वेल दैट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं विच आर द पार्ट ऑफ ओनली फेज 2, राइट, ओनली फेज 2 का ही पार्ट है वो, एंड दे आर नॉट द पार्ट ऑफ फेज 1. सो इन दैट केस ऑल दोज टॉपिक्स, द एमसीक्यूज रिलेटेड टू ऑल दोज टॉपिक्स यू विल गेट इन द कोर्स ऑफ एडिशनल सिलेबस, राइट. एडिशनल सिलेबस वाले में जो एमसीक्यूज रिलेटेड टू एडिशनल टॉपिक्स होंगे वो आपको यहां मिलेंगे इस वाले कोर्स में. एंड आफ्टर दैट द थर्ड कोर्स इज दैट इज फुल लेंथ मॉक टेस्ट. तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहां पर मिलेगा, जो कि आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपनी प्रिपरेशन चेक करने का, एक कंपीट करने का यू विल हैव अपॉर्चुनिटी बिफोर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन. सो दीज आर द 3 कोर्सेज दैट यू विल गेट एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, राइट. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट दीज कोर्सेज. ये कोर्सेज के ऑफरिंग्स क्या है, कोर्सेज के फीचर्स क्या हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. So the very first course is that the course of common syllabus, which will cover the MCQs from the topics mentioned in both phase 1 as well as phase 2. तो इस कोर्स में you will have more than 3700 that is 3700 plus MCQs for in this course itself. ठीक है, इस कोर्स में आपको more than 3700 MCQs मिलने वाले हैं related to topic which are common in both phase 1 as well as phase 2. तो इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल समझे तो यू कैन सी हियर दैट आवर चैप्टर नंबर 1 विल बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 5th, पार्ट 4th है, पार्ट 5th, पार्ट 6th, पार्ट 8th, पार्ट 9th A, पार्ट 9th B, पार्ट 11th. These parts are the part of both phase 1 as well as phase 2. तो इससे रिलेटेड जो भी MCQs हैं you will get in this course. That is the course of common syllabus. इसी तरीके से और भी टॉपिक्स जो कि दोनों फेज का पार्ट है, तो MCQs रिलेटेड टू ऑल दोज टॉपिक्स यू विल गेट इन दिस कोर्स. ठीक है, तो यहां पर आपको मोर देन 3700 MCQs you will get, right? So all these all are remaining topics that are the part of both phase 1 as well as phase 2. So if we talk about the other course, that is additional syllabus वाला कोर्स जो है, इसमें you will get the MCQs related to topics which are exclusively the part of phase 2 only. कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं? For example, you can see the Constitution of India वाला जो पार्ट है, उसमें पार्ट 12th, 13th, 14th, 14A and part 20. These are addition टू द टॉपिक्स विच आर पार्ट ऑफ फेज 1. ठीक है, फेज 1 में जो टॉपिक्स थे वो टॉपिक्स तो यहां पर रहेंगे ही, बट यहां पर एडिशनल टॉपिक्स हैं. तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं दैट यू विल गेट इन दिस कोर्स ओनली. ठीक है, इस कोर्स में आपको ये वाले रिलेटेड टॉपिक से एमसीक्यूज मिल जाएंगे. सो बेसिकली दिस कोर्स इज एक्सक्लूसिवली फॉर द टॉपिक्स विच आर एक्सक्लूसिव इन नेचर फॉर फेज 2 ओनली. अदर टॉपिक्स आर लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 8 to 10, चैप्टर 1 to 6 जो है वो फेज 1 का पार्ट है, बट अगर चैप्टर 8 to 10 की बात करें सो चैप्टर 8 to 10 आर द पार्ट ऑफ अवर फेज 2 ओनली. सिमिलरली इंडियन पीनल कोड की अगर बात करें तो उसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं जो यहां पर ऐड किए गए हैं एडिशनली फॉर फेज 2. सिमिलरली वी टॉक about code of civil procedure, if we talk about arbitration and conciliation act, तो यहां पर भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें एडिशन किया गया है फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर फेज 2, right? So in this course, that is the course of additional syllabus, you will get more than 1300 MCQs, more than 1300 MCQs for topics which are exclusive for phase 2. आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. सो इन कॉमन सिलेबस वाले में जो कोर्स रहेगा उसमें यू विल गेट मोर देन 3700 MCQs, और एडिशनल सिलेबस वाला जो टॉपिक है इसमें यू विल हैव द एक्सेस ऑफ मोर देन 1300 MCQs, राइट? देन these are other topics which are the part of our phase 2 only, like law of trust, Indian partnership act. If we talk about corporate laws, then here in this case the companies act में ये वाले चैप्टर कुछ एडिशन है. then limited liability partnership act, insolvency and bankruptcy code, and taxation general principles, capital gains tax and securities transaction tax. so ये टॉपिक्स जो हैं, ये टॉपिक्स एडिशनली सिर्फ फेज 2 में ही हैं, they are not the part of phase 1. ठीक है, सो फॉर देम यू विल हैव मोर देन 1300 MCQs. सो इन दोनों कोर्स को ही कवर करने पर यू विल कवर मोर देन 5000 MCQs. मोर देन 5000 MCQs आप इन कोर्सेज को कवर करते ही यू विल कवर अराउंड मोर देन 5000 MCQs, राइट? सो
तीसरा कोर्स भी उसके बाद है, दैट इज फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इन विच यू विल बी गिवन 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो पूरा आपको एग्जाम का फील आपको आएगा, एग्जाम का, यू विल सिमुलेट द एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट। सो यहां पर यू विल बी गिवन 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, दैट इज 50 क्वेश्चंस पर टेस्ट। जैसा कि आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में आता है 50 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व इन 40 मिनट्स ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। 50 क्वेश्चंस दैट इज 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, एंड यू हैव टू सॉल्व देम इन 40 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज द चैलेंज। 40 मिनट्स में यू हैव टू सॉल्व 50 क्वेश्चन। So without practice you cannot do this, right? You cannot do this without practice, and it will be very difficult for you to solve 50 MCQs in 40 minutes, right? बहुत ही difficult हो जाने वाला है। So for that you have to practice before the actual examination, और practice जो है वो आपको full length mock test के थ्रू आपको provide की जा रही है। इसका एक एडवांटेज और है, यहाँ पर आपने टाइम मैनेजमेंट का एक एडवांटेज देख लिया, इसका एक एडवांटेज और है, दैट यू कैन चेक योर प्रिपरेशन एट ऑल इंडिया लेवल थ्रू प्रैक्टिसिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपने पूरा कंटेंट कवर कर लिया, आपने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, देन नाउ द टाइम इज टू चेक योर प्रिपरेशन एट एन ऑल इंडिया लेवल। आपको एट ऑल इंडिया लेवल पर आपको अपनी प्रिपरेशन चेक करनी है, आपको कंपीट करना है अपने को कॉम्पिटिटर से, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी थ्रू 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो आपको ऑल इंडिया लेवल पर भी अपनी रैंक मालूम चलेगी, ऑल इंडिया लेवल पर आपको कंपटीशन मिलेगा बिफोर एक्चुअल एग्जामिनेशन। सो दिस विल बी द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन दैट कैन टेक योर प्रिपरेशन एट नेक्स्ट लेवल, राइट। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी कौन कौन से कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। दैट इज कोर्स रिलेटेड टू कॉमन सिलेबस, कोर्स रिलेटेड टू एडिशनल सिलेबस एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये 3 कोर्सेज होने वाले हैं, और इन तीनों ही कोर्सेज को सॉल्व करने के बाद यू विल solve more than 5000 MCQs, that is 5000 plus MCQs आप solve कर लेंगे, and that too chapter wise plus FLTs, that is full length mock test. So friends, आई होप आपको पूरी क्लैरिटी आ चुकी है कि आपको किस तरीके से चीजें मिलने वाली हैं, आपको किस तरीके से आपको चीजें कवर करनी है, उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन किया हमने। सो इफ यू वांट दिस कोर्स, सो यू कैन चेक द डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन, इन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बट इफ यू वांट टू अवेल 30% ऑफ, then you have to code early bird. This is our code through which you can have a discount of 30%. बट दिस इज वैलिड टिल 23 दिसंबर 2021, ठीक है। ये 23 दिसंबर 2021 तक ही वैलिड है। सो डू हरी इफ यू वांट टू अवेल दिस 30% ऑफ इन द कोर्स, एंड इफ यू वांट टू मेक योर प्रिपरेशन स्ट्रॉन्गर, क्योंकि 60 डेज में व्हाट यू कैन डू बेस्ट इज यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ पॉसिबल एमसीक्यूज थ्रू विच यू कैन टेक योर प्रिपरेशन एट नेक्स्ट लेवल। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दिस कोर्स। If you still have any doubt, so you can call us at this number, and also you can drop a mail at hello@edutap.co.in. So I hope you got the clarity, you enjoyed the session. So we'll come with another informative videos. Till then, goodbye and have a good day.